Very good morning, students. I was depicting about the women's education, very important lesson of the course. Most probably there is chance to come in your examination of board. Not only for the point of view of examination, it is very important for your knowledge also. So, you have seen that the mentality of the author is only to give the education to the women so that they can raise their standard in modern society. It is the ancient concept also. यह हमारा प्राचीन अवधारणा भी है कि नारियों को बहुत पहले से प्राचीन समय से ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी। इट इज द ओनली गिल्टी ऑफ मेडुअल एज। यह केवल मध्य युग का दोष था। So नारियों को only women were living in the curtain or boundary of the home. घर की चरदीवारी के अंदर उनको रखा जाता था। So there is need of aggressiveness to the women also. स्त्रियों को भी जरूरत है इस बात की कि वो भी डिसिप्लिन्ड माइंड और रिस्ट्रेंट मैनर की होनी चाहिए। In the first stanza to twice stanza, you have located that the best quality of the women has been prescribed by the author as restraint manner, discipline, compassion. These are. So, remain stanza locate. I am explaining to that. Please. The author had given the reference of Lakshman and Sumitra, the mother of Lakshman, cousin of Lord Ram. जब भगवान राम के साथ सीता और लक्ष्मण बन जा रहे थे, at that time Sumitra had Sumitra had told to measuring the precaution that Ram is as your father and Sita is as your mother and the forest is as the throne of Ayodhya. What is the ability of woman must be? Only son becomes the apple of an eyes. But she had given instruction to the Lakshman
to be obedient for the Ram and Sita as a servant. So you look at, there are even so many thrilling stories in our classics which will be instilled into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. Very important lines are these. There is also motivation to the everyone citizen to be aware for the ethic. There are even so many thrilling stories. बहुत ही हमारे अंदर रोमांच को उत्पन्न कर देने वाली हमारे पास कहानियां हैं इन आवर क्लासिक्स, हमारे शास्त्रों में। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग, exciting, exciting, in our classics, which will instill means to pour, to puff, instill, I-N-S-T-I-L, instill माने to puff, कह रहा है लेखक कि जो हमारे अंदर इंस्टिल कर देती हैं, भर देती हैं, फिलअप कर देती हैं into a great moral strength, उस महान महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ को, शक्ति को, नैतिक शक्ति को, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves, which will lay down for us, जो हमको ले जा रही हैं, ले जाती हैं, the lines on which, उन रेखाओं पर, उन सीमाओं पर, we to conduct ourselves, जो हम आचरण करते हैं। Our conduct is not just like our ancestors Ram and Lakshman. They were ideal ancestor of Indians. हमारे भारत के वो उच्च और आदर्श महापुरुषों में एक थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन हमारा आचरण और व्यवहार, और कंडक्ट एंड बिहेवियर इज नॉट जस्ट लाइक देम, उनके जैसा नहीं है। हमारा कंडक्ट और व्यवहार वैसा है जो हमको डाउन लेवल पे ले जाता है, निम्न स्तर पे ले जाता है। हमारा आचरण शुड बी सुपीरियर जस्ट लाइक देम, वैसा ही उच्च होना चाहिए जैसा उन लोगों का था। लेकिन हमारा स्तर अब निम्न हो गया है, जो हमारा कंडक्ट होना चाहिए वो एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुका है। गिव अस गुड ओमेन, वी विल हैव ग्रेट सिटीजन। देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ द वुमन एज प्रिस्क्राइब्ड। गिव अस गुड ओमेन, we will have a great civilization. Give us good omen. लेखक चेतावनी भी देता है और ईश्वर से मांग भी करता है कि हमको अच्छी औरतों को प्रदान करो, और we will have a great civilization, हम आपको अच्छी सभ्यता प्रदान कर सकें या कर दें। गिव अस गुड मदर्स, अच्छी माताओं को दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन,
जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके विचार में बहुत सारे उद्देश्य आ जाते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। गिव द पीपल, तमाम विचार लोगों को देते हैं। आपके दिमाग में तमाम विचार आते हैं और विचार को देते हैं। Those who are taught knowledge, जो हमें ज्ञान सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, संसार के बारे में, इन विच दे लिव, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, जिसे निवास स्थान प्राप्त है। लीव, टू रिमेन, रहना है, रहते हैं। कहाँ? साइंस में, हिस्ट्री में एंड ज्योग्राफी। कह रहा है हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की हम जानकारियां प्राप्त करके संसार के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, वह ज्ञान देने में इनेबल है, असमर्थ है। इनेबल, इनेबल है, यानी it has not ability, it has not ability, it has not ability to get that knowledge, उस ज्ञान को प्राप्त करने का। You also train the people, आपको भी लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। To acquire some technical skill, to acquire some technical skill, प्राविधिक जानकारी ग्रहण करने का, प्राविधिक योग्यता को ग्रहण करने का, टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। आपको लोगों को सचेत करना चाहिए कि वर्तमान समय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की पढ़ाई केवल हमारे ज्ञान के लिए हो सकती है, but that cannot fulfill to the necessities of our life if we are not acquired to the technical education। यदि हम शैक्षणिक स्तर पे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं और हमें तकनीकी ज्ञान का अभाव है, तो निश्चित रूप से हम जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। We can't fulfill the several necessities and wants of our life। इसलिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है लोगों को। सम टेक्निकल स्किल, प्राविधिक योग्यता के, by which they can earn a livelihood, ताकि वो अपनी जीविका के लिए धनोपार्जन कर सकें। It is the occasional aim of education in the present time. This is prayer, so that we can fulfill our necessities of life, living needs, ताकि हम अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। These are steel,
accepted the world over as the objects of education. These are still, आज यह accepted माने स्वीकार्य है, the world संसार के द्वारा as the object of education. Object माने उद्देश्य, aim, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में. It should be our object of education that our education should be fulfill the necessities of our life. Higher education cannot fulfill because there is great demand and chances, occasions to get the vocational work in the technical institutions, industrial institutions. This is industrial era, and in this era there is badly need of technology. But what is there specific about the kind of education imparted? But what is there specific about the kind of education imparted? Imparted माने प्रदान किया जाना या शुरू किया जाना. जो शिक्षाएं शिक्षण संस्थानों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए स्पेसिफिक माने विशेष, स्पेशल, विशेष रूप से शुरू की जाती हैं या दी जाती हैं इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में. We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the intimation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. The author says we have heard, हम लोगों ने सुना है, that the chief purpose of education, कि हमारे जीवन का, हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, is not merely, केवल यह नहीं है, the acquiring of skill, केवल कुशल ही होना, our information अथवा किसी चीज के बारे में सूचना ग्रहण कर लेना यानी ज्ञान ग्रहण कर लेना, but the initiation into a higher life. लेकिन इसके but the initiation means starting, लेकिन यह आरंभक होना चाहिए. इनिशिएटिंग, क्या बोलो, स्टार्टिंग, यह शुरुआत होनी चाहिए, हमारे शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए. बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, जीवन में उच्च प्रतिमानों को ग्रहण करने के लिए, इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, संसार में प्रवेश करने के लिए, संसार के बारे में जानकारी शुरू करने के लिए, विच ट्रांसेंड्स माने टू ऑब्टेन वैल्यूएबल, ट्रांसेंड्स मीन्स वैल्यूज ऑफ आवर, हायर वैल्यूज ऑफ आवर लाइफ, उनको हम ट्रांसेंड्स करें, उनको हम अपने जीवन में उच्च मूल्यों को ग्रहण करें. द वर्ड ऑफ स्पेस, इस ब्रह्मांड में, वर्ड ऑफ स्पेस मीन्स ब्रह्मांड में, एंड टाइम, ये दोनों अनंत हैं, समय कभी रुकता नहीं, यह समय की विशेषता है.
कालचक्र अनवरत अविराम अबाध गति से बढ़ता रहता है। कालचक्र अनवरत अविराम अबाध गति से बढ़ता रहता है। विदाउट एनी इम्पेडिमेंट टाइम रोटेट्स साइक्लिकली। इट इज द थियरी ऑफ इंडियन mythology, not only Indian mythology, everyone philosophical minded people just like the Karl Marx, Aristotle, Socrates, everyone has introduced that time is rotatable. समय चक्र, समय परिवर्तनशील है और वह डायनामिक आल्सो। नथिंग कांस्टेंट, एवरीथिंग इज डायनामिक। कोई चीज स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। तो इस प्रकार से those the later informs and animates the farmer, those the later informs, जो हमें बाद में यह इन्फॉर्म कर सकें, बता सकें, एनिमेट्स दी फार्मर, कि जो पूर्व में, फार्मर माने पहले जो बातें थी वो आज भी जीवंत हैं, उनको हम जीवित करें। जो हमारे प्राचीन परंपराएं थीं, जिनमें अच्छाइयां थीं, उनको हमको आज ग्रहण करने की जरूरत है, और जो बुराइयां थी उनको त्यागने की जरूरत है। द मीनिंग ऑफ अटरेंस इज दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हम प्राविधिक ज्ञान भी प्राप्त करें और संसार के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करें, समय के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करें। वह मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है जो समय के अनुसार खुद को परिवर्तित कर लेता है। One who is great, wise man who changes to himself according to the passage of time. Those the later informs and animates the former. That has been the main purpose of education. यह जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। For some centuries we neglected our women part. कई शताब्दियों से हम अपने स्त्री प्रजाति को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, यानी उनको हम सहभागिता से, कोऑर्डिनेशन से दूर रखते जा रहे हैं। वी आर कीपिंग टू दी अपार्ट टू वुमेन फॉर, स्त्रियों को आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं, हाउ यूर हैज बीन समवॉट डिफरेंट, कैसे भिन्न है। जो हमारे ये विचार हैं कि वुमेन्स आर नॉट बोनाफाइड और वुमेन्स आर अनएबल टू गिव हर help in the progress of the nation, in the progress of society. This meter of the Ved, ऋग्वेद, ऋग्वेद का यह मीटर, यह छंद, यह श्लोक उसकी पूर्ति करता है। क्या? What? पुरा कल्पसु नारीणाम मंदिरा बंदना निष्ठिता। In the ancient period, women thought were going in the temple for doing the worship of the god. प्राचीन समय में नारियों को अधिकार प्राप्त था कि वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर सकती हैं। मंदिरा बंदना निश्चिता, निश्चित था, डिसाइडेड था कि they are equally may be do the service of God, not service of God, service of society and nation in every one area. Number of examples we have.
विद्योत्मा गार्गी, विश्वला, अपाला, घोष. Even today also, we can see to all these talents, those who are inherent there. मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापन का वेदानाम, उनका जो है अधिकार वेदों के अध्ययन का भी था. Then we do to the स्टडी ऑफ वेद गायत्री मंत्र था, और गायत्री मंत्र का वो जाप कर सकती हैं. दे आर डिजर्व फॉर चांटिंग टू दी गायत्री मंत्र. इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन संस्कार परफॉर्म फॉर देम. उपनयना इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, हमारे स्त्री यहाँ नारियों का भी उपनयन सेरेमनी में संस्कार होता था. परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए परफॉर्म किया जाता था नारियों का उपनयन संस्कार. जनेऊ भी होता था. देवर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास, वो वेद का अध्ययन करने की इंटाइटल थी, वो वेद का अध्ययन करने का अधिकार रखती थी. देवर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चांटिंग ऑफ गायत्री जापा, वे गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती थी, चांट भी कर सकती थी. ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, हमारे स्त्रियों के, हमारे यहाँ की स्त्रियों के लिए प्राचीन काल में हर क्षेत्र में दरवाजे खुले थे. बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिकाय ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमन. बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता अरेस्ट हो गई, घिर गई. एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिकाई, सबसे बड़ा लक्षण है हमारी जो सभ्यता थी उसके डिकाई माने नष्ट होने का, डिस्ट्रक्ट होने का. इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, सब्जेक्शन माने टू मेक द सर्वेंट ऑफ समवन, ये दास प्रथा. जब से नारियों को सिर्फ केवल दास समझा जाने लगा, तब से वह कल्चर, वह सिविलाइजेशन खत्म हो गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू दी एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयास से, एक्सर्शन मीन्स इफर्ट, एक्सर्शन exertion means effort. महात्मा गांधी ने प्रयास किया. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद a revolution has been effected in our country, एक क्रांति हमारे देश को प्रभावित की. एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और नारियां आज अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो रही हैं. इट इज द pious मोटिवेशन ऑफ द ऑथर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ग्रेट पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, thinker of our country. With this word, I finish to this lesson. Thank you.